Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 10th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Determinant method, otherwise called Cramer's rule, that is the next method. This method was first given by a Swiss mathematician Gabriel Cramer. So it is also known as Cramer's method, and he lived at a time 1704 to 1752. So sorry that he lived only for 48 years, very unfortunately. This Swiss mathematician was born in Geneva. He was very well versed in mathematics since childhood. At the age of 18, आपसे 3 साल बड़ा, he got a doctorate. He was a professor in Geneva. We need to give our salute and tribute to such people who contributed to mathematics for years to come. For years to come, they contributed. Okay, so we feel like what we say, because of such people, we are enjoying the different aspects of life, I would say. Anyway, coming back to the topic, Cramer's rule is the next method by which we can find out solution for simultaneous equation. And before understanding how and the Cramer's rule came into effect, we are studying Cramer's rule directly. Cramer's rule कैसे हुआ ये आप 11th standard maths में पढ़ेंगे. Cramer's rule is another method that can be used to solve the system in linear equation using determinants. Determinant is an array of numbers enclosed in 2 vertical bars. This is what is meant as vertical bars indicate these 2 lines. ये जो line दिख रहा है मैं अभी red color करता हूँ. This line. This is a way of presentation of determinant, and there are set of numbers inside. Instead of numbers आपको ABCD डाल के दिखाया. This way we present determinant. That further he said that, one second, if determinants or the numbers we are writing like this is answer, or how to get the product of it, the result of it, he said that it can be obtained by this equation. Determinants having two pairs, I mean 2 into 2 is a word used, 2 into 2, this is the arrangement. Actually it is like this, right? ऐसे 2 का setting किया है. If it is arranged in each row and we can present it like this, then the product, the answer would be AD minus BC. A multiplied by D, B A multiplied by D, C multiplied by B, which is written as BC, minus, subtract. This is the answer for such an array. AD minus BC is a value of the determinant. तो आपको ये पेज है ना जो सामने आपका है, ये ऐसे ही ऐसे आपको समझना है. पहले मुझे ऐसा डिटर्मिनेंट्स के अंदर नंबर्स को डालना है, वैसे नंबर डालने के बाद ये फॉर्मेट में इसका ऑपरेशन करना है. नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड, ये डिटर्मिनेंट किधर से आया, ये ऐसा क्यों डाल रहे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे, इसका आंसर आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे आप हायर क्लास 11th 12th उधर मिलेंगे. अभी आपको वो नहीं है, आपको इसका एप्लीकेशन है. जैसे कि हम कंप्यूटर में बैठने के टाइम अगर आपको पूछेगा शिफ्ट बटन दबाए तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, यू डोंट नो बट यू आर यूजिंग इट डेली. मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन कैसे होता है, हाँ अंदर कुछ तो है. तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी बात है, वो अभी नहीं. विल गो अहेड. सपोज दैट दिस इज द डिटर्मिनेंट गिवन टू यू, and if you are asked to find out answer, ये आपका टेक्स्ट बुक आया वापस, you will apply Cramer's rule and you will multiply A into D and B into C. अभी मैं करके देखता हूँ कैसा होगा. A into D मतलब ये मुझे करना है, -8 into 4, तो ये हो गया, राइट. A into D subtract, ये आ गया. B इंटू सी मतलब C इंटू बी, ये ऐसा करेंगे. 2 इंटू -3 विथ साइन, तो क्या हो गया, इधर 32 हो गया और साइन नेगेटिव, माइनस ये हो गया -6. इंटीजर्स में आ गया, इसका मतलब -32
प्लस चेंज द साइन एंड ऐड, इसका साइन चेंज किया, ऐड किया एंड आंसर मिल गया -26. दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये आपको एक एक्सरसाइज है, आपके टेक्स्ट बुक में 3-4 सम दिया है, आपको करना है, करना है, करना है, करना है. 4 ही दिया है, उसमें कर चुका है. नाउ if this is the situation, we will go ahead to see that what further we should understand. Before that, let me remove this. आपका स्कूल का बोर्ड जैसा है, रिमूव करने को भूल गए तो उधर ही रह जाएंगे. Now we will go to the textbook once again. Cramer's method अभी आपको समझ में आया. हम क्यों Cramer's method समझ रहे हैं? Cramer's method से अपना क्या सॉल्व करना है? Linear equation in 2 variables solve करना है. So we will come back to linear equation. Here we have got 2 equation. One equation is sample equation है. What is it? a1 x b1 y is equal to c. दूसरा equation है बताने के लिए a2 कर दिया, देखा. तो ये 2 equations मिल गया. ये मैं जरा फास्ट जाएंगे, आपका टेक्स्ट बुक का पेज है, आपको वो टेक्स्ट बुक का पेज समझने के लिए मैं बता रहा हूँ. So there are 2 equations. It can be any, but these are the sample equations for following the standard form. Polynomial के टाइम पे से आ रहे standard form. और उसमें कोएफिशिएंट फॉर्म पढ़ा था, जिसमें हम सिर्फ कोएफिशिएंट को अटेंड करेंगे. हम वही करने जा रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट को अटेंड करने जा रहा हूँ. कोएफिशिएंट को अटेंड किए तो क्या आएगा? वी विल टेक आउट द कोएफिशिएंट, तभी तो कोएफिशिएंट हो जाएगा. सो दैट एवरीथिंग व्हाट वी स्टडी बिफोर comes into use. Now we are having 2 equation. One equation is this, second equation is this. We will multiply the first equation. We will multiply the first equation with b2, second equation with by. तब सोचेंगे क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? हमको ये इक्वेशन को x और y फाइंड आउट करना है. x और y फाइंड आउट करने का फॉर्मूला में पहुंचाना है. तो हमने एक काम किया था, एलिमिनेशन मेथड. हमको ये b1y को निकालेंगे तो हमको x का टर्म में इक्वेशन आएगा. अगर a2x या a1x निकालेगा तो हमको y का टर्म्स में इक्वेशन आएगा. अगर x मिलना है तो हमको b1y को रिमूव करना है, राइट. तो हम b2 से मल्टीप्लाई करने से हियर वी गॉट b1 b2y. सेकेंड इक्वेशन में b2 b1y. ये b1 b2 और b2 b1 एक ही है और ये दोनों सेम दिख रहे हैं. तो हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई आवर कॉमन सेंस ऑफ व्हाट वी से, कॉमन सेंस ऑफ एलिमिनेशन. अभी हम अप्लाई करने जा रहा हूँ. दिस इज डिफिकल्ट टू रिमूव नाउ, दैट इज द प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हेन इट कम्स. ओके, नाउ वी विल गो टू द next stage. What is next stage? Next stage we have multiplied and we have got this, sorry, we have got these 2 common. So what we will do in such situation? In such situation we will be subtracting one from the other so that this can be eliminated. And we got a1 b2x a2 b1, ये अलग अलग है, एक a1 एक a2 अलग अलग है. So we got this, x is common, we wrote it like this, मतलब from here to here ये cancel हो गया. And we got this one right side, this is subtraction here, so इधर subtraction आ गया. And here it is subtraction, so इधर subtraction आ गया. a1 b2x minus a2 b1x, तो x कॉमन बाहर डाल दिया and we got it. Okay, what we will do now, we will take this to the next screen. Okay, and this, from this fundamental we will find out equation for x, equation for y. Equation for x और y आ गया. x के नाम पे एक इक्वेशन बनाया, इसमें से कैसे बनाया? We know how to do it. This is x, x को लेफ्ट में रखा और this went to the other side and it became like this. If x is like this, naturally जब x ढूंढने के गए तो हमने b2 से मल्टीप्लाई करके b2 b1 का बन गया. अगर y ढूंढने जाएगा तो हम a से मल्टीप्लाई करेगा, बट दिस विल बी रिमेनिंग as it is the same way. Similarly we will get this. आपको समझने के लिए प्रूफ आपको लिखना नहीं एग्जाम में, कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा. अभी x का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया
and the same way y का एक formula we could derive, right? Now we will go ahead with this information in such a way that we can convert this. We found that there is a subtraction sign. क्या देखा? उधर एक subtraction sign है. Here also there is a subtraction sign. अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स लिखने के टाइम ये डिटर्मिनेंट कैसा था, उसमें भी ऐसे सब्ट्रैक्शन साइन आया था. जैसा कि वो सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्मेट. देखा? क्योंकि C1 B2 माइनस C2 B1, देखो ऐसा मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाता है. ऐसा मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाता है. तो वी कन्वर्टेड आवर इक्वेशन फॉर x इनटू ए डिटर्मिनेंट फॉर्मेट. बस यही टेक्निक है. आप अगर किसी को भी ये स्टेज में डिफिकल्टी हो रही है, टेक्स्ट बुक का ये टेक्स्ट बुक का पेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए, नेक्स्ट पेज में क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन में क्लियर हो जाएगा. So now we converted the equation into determinant format. Converted this equation into determinant format. ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है. That's why next page will be clear to you. So I am going ahead. If anybody is having difficulty, stop here, look into the textbook, stop here, go through the video once again. No problem. And we are going ahead. When we go ahead, what will happen? We'll remove all these things and we'll place. This is our असेट ना हो. हमारे पास अल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया. ये टेक्निक हमको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी गॉट दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट, करेक्ट? एंड वी विल मेक 3 कॉलम्स विथ हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट. इसलिए कोएफिशिएंट A1 A2, ठीक है, B1 B2, ठीक है, C1 C2, ठीक है. तो ये 3 कॉलम्स बनाया और हमको उधर क्या मिला था? C1 B2 माइनस C2 जो मिला था हमारे मन में है, इसलिए इधर रिमेंबर लिखा है टेक्स्ट बुक वाले ने. आपको वो याद है? और ये इक्वेशन है, ये 3 कॉलम्स, ये सब आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं. देन व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट bring this particular thing into this format. Take these 2 and place here. Okay, take these 2 and place here. तो आपको x मिलेगा. Take this and place here. You will get y because ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है. तो जब आपको x मिलना है, आपको यूज करना है ये दोनों को. आपको y मिलना है, आपको x को y को छोड़ के बाकी यूज करना है. सो यू विल गेट डिटर्मिनेंट and determinant of x, determinant of y in this format. Once you got this, you will apply the formula of multiplication and subtraction. So we got columns, we can write columns easily. अभी वो लिखना मुश्किल नहीं है और उसके बाद ऐसा convert करना भी मुश्किल नहीं है. Then we will go to the next stage. Now dear students, we are ready for applying Cramer's rule to find out solution for a linear equation in linear equation in 2 variable. Why? Because we are having algebraic equation here in 2 variables. We know to write it in column wise. We know to convert that into determinant form. We know what to do to get the value of it. This is very important. Only 4 questions are given in your textbook, but it is very important. You will multiply in this format and will get the answer. This is the value of the determinant. From that value you will get and you will get xy. मतलब algebraic linear equation से शुरू होके उसके अंदर का xy ढूंढने के लिए हम Cramer's rule अप्लाई करके xy ले रहे हैं.
Okay, this is from your textbook, same step. I little bit elaborated here. Now let us go to the final stage or application of it. Okay, so just wait. Let me take a example or what is given in your textbook. This is an example for practice. वही सब मैंने डाला है जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड में यूज़ किया हुआ वही सब मैंने इधर डाला है. हमको पहले ही मालूम इसका x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि पहले किया है. फिर भी हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग इज we should know, this is from your textbook, the example come practice activity है. First thing is textbook direct भरने को बोला है, but we will have the steps. First thing is we have to write it in the form of ABC columns. Columns बनाने आना होते ना. So this is x, this is y, this is the constant. So we will write it in 3 column format like 2, this one and 1 here. Correct? Then we will write minus 1 and here it is 1. Then we will write 2 here and 4 here. 2 and 4. ये तीनों मिल गया. Now this is of our A वाला, B वाला, C वाला. ये X वाला, Y वाला and this is constant. Now first one is the determinant. For that we will be using A and B. So what we will write? We will look at here only, here and here only. So we'll write the same 2 and 1 x k coefficient minus 1 and 1 y k coefficient, and we'll apply that, multiply like this. Okay, 2 ones are 2 minus 1. That means you will get 2 minus minus 1, which is equal to 3. We will write 3 here. Now we will have a पेन थोड़ा पतला कर देता हूँ, देखता हूँ. ठीक, क्योंकि चौथा लिखना पड़े. सेकंड इज x मिलने के लिए हम x का कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे. x का कोएफिशिएंट क्या है? दिस वन वी विल नॉट कंसिडर. इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, रफ वर्क है. तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को कंसिडर करना है. दिस इज y एंड दिस इज कांस्टेंट. तो y के जगह पे y जाएगा. व्हाट इज इट? y का जगह है -1 एंड 1, और ये जो है ना कांस्टेंट x के जगह पे आके बैठेंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 1s are 2 minus -4 which is equal to 2 plus 4 which is equal to 6. तो वो 6 इधर डालेंगे. Now take the third case where we have to get determinant for y. तो x का कॉलम, y का कॉलम को कैंसिल कर दिया. x का कॉलम और c कॉलम चाहिए. c कॉलम और x कॉलम x की जगह पे क्या है? 2 and 1. ये x वाला कोएफिशिएंट है और y तो लेना नहीं क्योंकि y ढूंढ रहा हूं. तो 2 and 4 अपना कांस्टेंट वाला. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 4s are 8. ये 2 है. -2 which is equal to 6. इधर भी 6 मिल गया. नाउ x मिलना है तो क्या फॉर्मूला है? x मिलने का फॉर्मूला क्या है? x मिलने का फॉर्मूला है अपना tx upon d. तो we are having 6 upon 3 which is equal to 2. y मिलने का फॉर्मूला है dy upon d. This is dy. So 6 upon 3 वापस वही आया, आंसर 2 आ गया. हम बहुत पहले ही मालूम है आंसर ये आने वाला, क्योंकि दिस इज फोर्थ मेथड वी आर यूजिंग टू सॉल्व ए साइमल्टेनियस इक्वेशन. सेम एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको 2 and 2 करेक्ट आंसर मिल गया. सो इन दिस स्क्रीन वॉट एवर यू आर सीइंग इज व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम. यू विल मेक कॉलम, मेरे से अच्छा बनाएंगे और इसको फिलअप करेंगे, क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएंगे. 2 और 1, 8 और 2 सब लिख के आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आंसर तक पहुंच गए. ग्रेट. थोड़ा क्लियर कर देता हूं तो अपना बोर्ड को. ठीक, विल गो अहेड
and we'll close the video also. This is an example from your textbook. Here is an equation, linear equation in two variable. One is given here, one is given here. Equation is given here. ये देखो 5 और 3 को x की जगह 5 है और इधर 2 है, डाल दिया, 3 और 4 डाल दिया, d मिल गया, 11 और -10 कांस्टेंट डाल दिया, ये डाल दिया, ये y डाल दिया तो x मिल गया, x के लिए y डालते हैं, y के लिए x डालते हैं, ये इधर आ गया, y के जगह पे y, x के जगह पे x, इतना याद करने का, और d मिलने के लिए xy, तो कांस्टेंट नहीं चाहिए, एंड यू गेट द आंसर अप्लाइंग द क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड यू विल डिवाइड dx by d, dy by d, get the solution. एग्जाम्पल है, आपका टेक्स्ट बुक है, फास्ट किस लिए गया. ओके, एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अच्छा रास्ता दिया है. व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ एक्सपर्ट? किसी का मदद बिना, गाइड भी नहीं देखने का, इंटरनेट भी नहीं देखने का, टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करने का. एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, एक ही बार सॉल्व करना है, लेकिन खुद सॉल्व करना है. एक बार खुद सॉल्व किया, दैट मीन्स यू हैव लर्नड. देन when you do it again and again, you will become an expert. So my dear students, very very important lesson, very important principle. Practice makes man perfect. जब साइकिल चलाना शुरू किए तो बैलेंस नहीं मिल रहा था, गिर रहा था. अभी साइकिल को हैंडल नहीं है तो अभी हम चलाएंगे, क्योंकि इतना चलाया, इतना प्रैक्टिस किया. एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, whether it is cycle or mathematics, if you practice then only you will become expert. और आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है बोर्ड में जो आपका टेक्स्ट बुक से आंसर नहीं मिल सकते, मतलब टेक्स्ट बुक में अपने दिमाग से, बट जल्दी करना है तो प्रैक्टिस करना है. अभी मैं बहुत स्लोली हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसलिए बताया कि फंडामेंटल ओके है, आपको कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन डे टू डे लाइफ, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम, यू विल बी गेटिंग मार्क. बहुत एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट में, सब टाइम लेके समझ लो. एंड एक्सरसाइज टीचर के लिए नहीं है, आपके लिए है. करेक्ट? किधर भी एक्सरसाइज सुनेगा तो कभी नहीं सोचने का कि मुझे इसका आंसर चाहिए. दैट इज नॉट व्हाट इज लर्निंग एंड एजुकेशन. Exercise is given to check whether you understood the text. इंग्लिश लेसन में एक स्टोरी देने के बाद स्टोरी लिखने वाला क्वेश्चन नहीं लिखा था, टीचर ने बनाया क्वेश्चन. क्यों? आपको स्टोरी समझ गया क्या देखने के लिए. द सेम वे मैथमेटिक्स में कंसेप्ट दिया, एग्जाम्पल्स दिया, आपको समझाया. नाउ यू हैव टू गेट द थिंग चेक्ड बाय योरसेल्फ whether you understood or not. If you are not able to answer the exercise, you have not understood the concept. अगर गाइड से, इंटरनेट से, वीडियो से अगर आपका एक्सरसाइज का आंसर आपने ढूंढा और निकाला, मतलब आपका दिमाग यूज ही नहीं किया है. इट शुड नॉट हैपन. बी स्ट्रांग बाय डूइंग एक्सरसाइज योरसेल्फ. थैंक यू. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.